Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 8, subject Social Science, chapter number 9, The Freedom Movement of 1857, part 2. So in last video we discussed about the reasons for the outbreak of the revolt, and in that we studied different reasons like social and religious reasons, economic reasons, political reasons, military reasons, and finally we stop at the discussion of immediate reasons. So those who were not watch part 1 of this chapter, uh, please watch that video first, then after you can understand what is the story is going on. So in this video we are going to study about how did the revolt was started, what was the planning of that, and what kind of impact found, how did the other state support to this revolt, and after achieving small success, what was the reason of the failure of the revolt, and what kind of impact of the revolt found in our country. So before start this video, as I told every time, if you are not sitting properly, then sit properly. This is educational video, so you must have to respect your education. Another thing that take a notebook and pen with you whenever you feel that this is important point, then you should write in your notebook and prepare your notes. That will be helpful you in your revision work. And like the video, share the video, subscribe the channel and press the bell icon. So revolt and Mangal Pandey. Mangal Pandey's role was very important in the revolt. Actually this was already planned. रिवोल्ट का हमने प्लानिंग कर दिया था बट ड्यू टू दैट एनफील्ड राइफल विच इंट्रोड्यूस इन बराकपुर 19 battalion and the cartridge of that rifle was greased by the meat of cow and pig. That was the reason that revolt was outbreak earlier than the decided date. तो रिवोल्ट जो करना है वो हमने प्लान कर लिया था बट मंगल पांडे से ये बर्दाश्त नहीं हुआ एंड द रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बिफोर whatever the date was decided before that date, and that was one of the reason of the failure. So Mangal Pandey was a young Brahmin soldier in the 34th Battalion. British officer decided that 19th Battalion was to have a trial run of the newly acquired cartridge that had the coating of cow's pig's fat, a Barakpur near Kolkata, before inserting the cartridge in the guns. The casing had to be removed with one's teeth, and thus the fat would have to come into contact with the soldier's mouth. तो जो कार्टिज का प्रॉब्लम था उसकी वजह से मंगल पांडे ने इसको ओपोज किया सबसे पहले. On March 29, 1857, near Kolkata, a young boy Mangal Pandey refused to use the Enfield rifle and shot down his sergeant. He was arrested, tried and executed. When this news spread, many sepoys started the revolt. फिर मंगल पांडे ने सार्जेंट को शॉट कर दिया और उसकी वजह से ये रिवोल्ट जो है वो स्प्रेड हुआ. तो बेसिकली जो रिवोल्ट का प्लानिंग था वो कुछ इस तरह का था. इट वॉज प्लान बिगिन द रिवोल्ट अक्रॉस द नेशन अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 31 May 1857. तो रिवोल्ट जो स्टार्ट करना था वो 31 May 1857 को चालू करना था. Leaders like Nana Sahib Peshwa, Bahadur Shah, Zafar, Kunwar Singh and the Nawab of Awadh had joined hands with Tatya Tope, an efficient military commander. तो जो लीडर्स है वो यहाँ पे है.
ये आपको मैं दिखा देता हूँ। नाना साहेब, तात्या तोपे, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफ़र, जो नवाब ऑफ अवध के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने तात्या तोपे के साथ मिलकर प्लान बना दिया। रंगो बापूजी एंड accomplished planner and Azimullah Khan, a lawyer, had a journalist to lead the revolt. अब ये रिवोल्ट जो लीड करने वाले थे, इसमें ये रंगो बापूजी हैं, ये उनकी फ़ोटो है, और अजीमुल्ला खान जो लॉयर थे, तो ये अजीमुल्ला खान की फ़ोटो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1830 to 1858। तो ये बेसिकली आपको बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको वीडियो देखने के टाइम पे सब कैरेक्टर आपको दिखाई देते हैं। इसकी वजह से आपका कंटेंट जो है वो और अच्छे से क्लियर होता है। तो ये लोग लीडर थे, और जो सिंबल जो हमने रखा था, दैट वाज लोटस एंड रोटी, वेयर द सिंबल्स टू जॉइन द रिवोल्ट फॉर द सिविलियंस एंड द सोल्जर्स रिस्पेक्टिवली। तो जो सिंबल था वो रोटी, इट मीन्स चपाटी, एंड लोटस था। These symbols were circulated across the nation. Bards, Hindus, Muslim priests, Auliyas and messengers played their part in spreading the word about the revolt. तो सब लोगों ने लोकल अपने लेवल पर हेल्प की। मंगल पांडे opposed the use of the cartridge greased with the fat of cows and pigs. मंगल पांडे ने सबसे पहले oppose किया। As a result, the revolt began earlier than the fixed date. और उसकी वजह से जो रिवोल्ट 31 में 1857 को स्टार्ट करना था, उससे पहले चालू हुआ। इट डिस्टर्बटेड द प्लानिंग एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिवोल्ट कुड नॉट बी अचीव्ड। अब इसकी वजह से प्लानिंग पूरा डिस्टर्ब हो गया। फॉर एग्जांपल, आपके स्कूल में अनाउंसमेंट हो कि आपकी एग्ज़ाम XYZ डेट से चालू होने वाली है, और उससे 10 डेज़ या 15 डेज़ पहले चालू हो जाएगी, तो आपका पूरा प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। आपका जो रिवीजन का आपने शेड्यूल बनाया होगा, नोट्स प्रिपेयर करने का शेड्यूल बनाया होगा, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। और यही यहाँ पे हुआ कि रिवोल्ट की जो डेट थी 31 में 1857, मंगल पांडे की एंगर की वजह से, उनकी फीलिंग्स की वजह से रिवोल्ट जल्दी स्टार्ट हो गया और पूरा का पूरा प्लानिंग डिस्टर्ब हो गया। मंगल पांडे वॉज born to a Brahmin couple in Nagwa village of Uttar Pradesh. He joined the British army as a soldier at ₹7 as his salary. The Indian soldiers who had agreed to revolt wanted to wait till 31st May, whereas 26 years old Mangal Pandey could not wait till then. क्योंकि यंग ब्लड था, 26 ईयर्स की एज थी। अब ये एज में जो हमारे इमोशंस होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। ही रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ यूजिंग द एनफील्ड राइफल एंड चैलेंज द ब्रिटिश ऑफिसर्स। सार्जेंट मेजर होसन ऑर्डर टू अरेस्ट हिम बट मंगल पांडे शॉट हिम। तो ये सार्जेंट मेजर होसन, इसकी पिक्चर ढूंढने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, पर इनको मंगल पांडे ने मार दिया। अब जो मंगल पांडे को पनिशमेंट हुई थी, उनको हैंग किया गया, ये वहाँ की पिक्चर है कि इस तरह से पहले के ज़माने में फांसी देते थे। और ये सब से रानी ऑफ झांसी, तात्या तोपे, नाना साहेब। इसके बाद क्या हुआ, तो ही डिफीटेड अनदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टू, उसने दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी डिफीट किया। द इंडियन सोल्जर्स रिफ्यूज टू अरेस्ट मंगल पांडे, और बाकी जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने मंगल पांडे को अरेस्ट करने से मना कर दिया। बीइंग अ ब्राह्मण, when he was concerned by the British soldier, he shot himself by his own rifle. जब ब्रिटिश सोल्जर्स ने मंगल पांडे को पकड़ने की कोशिश की, तो मंगल पांडे ने अपने आप को खुद को गोली मार दी। A bleeding Mangal Pandey was taken to the hospital because the British wanted to get information about the plan of the revolt from him. अब ऐसे जख्मी मंगल पांडे को हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो मंगल पांडे के पास से सब इन्फॉर्मेशन निकाले कि रिवोल्ट का प्लानिंग क्या है, कैसे है। The military court pretended to run a case against Mangal Pandey on 6th April 1857.
6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे के अगेंस्ट मिलिट्री कोर्ट में केस स्टार्ट हो गया। द एंटायर प्रोसीडिंग वॉज इन इंग्लिश। पर प्रॉब्लम क्या था कि पूरी कोर्ट की जो कार्यवाही है वो पूरी इंग्लिश में थी। ही वॉज सेंटेंस टू डेथ एट द एंड बट ही डिड नॉट divulge any information regarding the revolt of the British। ब्रिटिशर्स ने कोर्ट में उनको काफ़ी ऑप्शंस भी दिए कि अगर आप रिवोल्ट के बारे में हमें बता दोगे तो हम आपको सेंटेंस ऑफ डेथ यानी फांसी पे चढ़ाने की जो पनिशमेंट है वो नहीं देंगे। पर मंगल पांडे इतने ब्रेव थे कि उन्होंने मरना पसंद किया, पर रिवोल्ट के रिलेटेड एक भी इंफॉर्मेशन उन्होंने बताई नहीं। डेट्स हाउ आवर पेट्रोइट्स वेयर। और ये इस तरह के लोग हमारी कंट्री में थे जो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते थे। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक ही बात बोली थी कि हमारे अंदर नेशनलिज्म कितना है। इन लोगों में जो रिवोल्ट या फ्रीडम स्ट्रगल में जो लोग इन्वॉल्व थे उनका जो फीलिंग्स था अपने कंट्री के लिए, इंडिया के लिए, उसकी 1%, ओनली 1% भी फीलिंग हमारे अंदर हो तो इंडिया नंबर 1 कंट्री बन सकता है। पर हमारे अंदर इतनी भी फीलिंग्स नहीं है, इसलिए हम क्लीनलीनेस का ध्यान नहीं रखते हैं। वी वेस्ट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो ये किस तरह के लोग होंगे जो अपनी जान देने के लिए भी रेडी हो जाते थे। अब आपको कोई बोलेगा कि आपको आपकी कंट्री के लिए मरना है तो यू विल नॉट एग्री। आप या मैं, हम लोग रेडी नहीं होंगे। क्यों रेडी नहीं होंगे? क्योंकि हमारे अंदर इतनी फीलिंग्स नहीं है, और ये हमें इस चैप्टर से सीखना है। ही वॉज हैंग्ड एट 5:30 AM on 8th April। That's how he became the first martyr of the revolt of 1857। और मंगल पांडे को 8 अप्रैल को 5:30 AM मॉर्निंग में फांसी दी गई। और इस तरह से मंगल पांडे जो है वो रिवोल्ट ऑफ 1857 के सबसे पहले मार्टर यानी शहीद बने। तो इस तरह से मंगल पांडे के थ्रू ये रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। अब ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है वो देखते हैं। तो दिल्ली एंड बहादुर शाह जफर। तो ये मीरठ से दिल्ली तक कैसे पहुंचता है रिवोल्ट, ये यहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे मैंने स्लाइड में लिखा है 9 May 1857, 85 sepoys were court-martialed. They had refused to use new cartridge. Next day, their companions attacked the jail. Sepoys were freed. Officers and Europeans were killed. Revolt headed towards Delhi. और इस तरह से मीरठ से ये दिल्ली तक पहुंचा। On 12th May 1857, Delhi was in custody बाई रिबेल्स। अब ब्रिटिशर्स को आइडिया नहीं था कि ये सब होने वाला है, और उसकी वजह से उनका कोई भी ये रिवोल्ट को डिफीट करने का कोई भी प्लान नहीं था। ऑन 12th में 1857 दिल्ली वॉज इन कस्टडी बाई रिबेल्स। तो ये जो सिपोइस जो थे वो दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने दिल्ली पे कंट्रोल कर लिया। सम यूरोपियंस वेर शॉट डेड। बहादुर शाह टू वॉज परस्यूडेड टू सपोर्ट। लॉस ऑफ दिल्ली वॉज अ प्रेस्टीज लॉस ऑफ ब्रिटिश। ऑन 20 September 1857 ब्रिटिश रिगेन दिल्ली। 3 sons killed and the king and queen exiled to रंगून। ये बहादुर शाह जो थे, बहादुर शाह टू, बहादुर शाह जफर, उनके 3 लड़कों को मार दिया गया और इन किंग और क्वीन को रंगून भेजा गया। द किंग डाइड इन 1862। और 1862 में रंगून में, जो बर्मा में है, वहाँ पे इनकी डेथ हो गई। द सोल्जर्स रीच दिल्ली फ्रॉम मीरठ। तो ये आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं किस तरह से वो मेरठ से लेके मीरठ, यहाँ से विक्टोरिया पार्क 10 मई 1857 किस तरह से ये
आगे बढ़े, यहाँ से इस तरह से ये दिल्ली तक पहुँचे। ये क्लियर मैप है किस तरह से एक एक रीजन उन्होंने कवर किया। और ये है बहादुर शाह जफ़र। In the morning of 11th May, they could capture Delhi with the help of the Indian soldiers present there. They convinced the 80 years old Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar to accept the leadership of the revolt. This news infused a new life in the revolt and many regions of India joined the revolt. जैसे ही लोगों को पता चला कि दिल्ली में हमने कंट्रोल कर दिया है, तो वो न्यूज़ की वजह से बाकी जो रीजन्स थे उन्होंने भी रिवोल्ट में इन्वॉल्व होना चालू कर दिया। सेकंड जो स्टेट है वो है कानपुर, नाना साहेब। कानपुर broke into the revolt on 4th June 1857 and Nana Sahib Peshwa was attacked to assume the leadership of the revolt. However, they had to surrender to the Britishers following an acute shortage of food and water due to a 22 days long siege. यानी 22 डेज लॉन्ग उनके साथ फाइट देने के बाद जब यहाँ पे खाना पीना सब ख़त्म हो गया तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो ये है नाना साहेब पेशवा। और यहाँ पे भी यही डिटेल्स है कि किस तरह से उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने फाइट दी। तो इस तरह से कानपुर हमारे हाथ में आया और चला गया। फिर जो है वो है बिहार, कुंवर सिंह। ये है कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह led the Indian rebellion of 1857 in Bihar. He was nearly 80 and in failing health when he was called upon to take up arms. He gave a good fight and harried British force for nearly a year and remained invisible until the end. He was an expert in the art of guerrilla warfare. ये अलग अलग टाइप की जो आर्मी में टेक्निक्स यूज़ होती है उसमें से एक है गोरिल्ला वॉरफेयर। वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, उसकी ट्रेनिंग भी काफ़ी टफ होती है। आज की डेट में भी हमारे जो गुरखा बटालियन है उसमें ये ट्रेनिंग दी जाती है। He was the first Indian warrior after Shivaji to prove the efficiency of the warfare. His tactic left British puzzled. ये उनका पूरा डिटेल है। द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 एट द एज ऑफ 80 ईयर्स। 80 ईयर्स के एज में इन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। तो कितनी इनके अंदर स्ट्रेंथ होगी। ये कुंवर सिंह के बारे में डिटेल है। कुंवर सिंह बिलोंग टू अ रॉयल उज्जैन राजपूत हाउस ऑफ जगदीशपुर, करंटली अ पार्ट ऑफ भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार, इंडिया। उनका वो टाइम का है। ये और डिटेल है उनके बारे में। 77 में उनका बॉर्न हुआ था, 1858 में उनकी डेथ हुई। तो ये भी बहुत ही ब्रेवली फाइट रिवोल्ट में इन्वॉल्व थे और ब्रिटिशर्स को बहुत ही ब्रेवली फाइट दी। पटना एंड जगदीशपुर were the main center of the revolt in Bihar. Kuwar Singh, a 70 years old landlord, was the leader of the revolt. He fought bravely against the Britishers. During a battle, he got shot in his arm. तो यहाँ 70 ईयर्स लिखा है, 80 ईयर्स उनकी एज थी और रिवोल्ट के ड्यूरिंग उनके हाथ पे गोली लगी। ड्यूरिंग अ बैटल ही गॉट शॉट in his arm. To stop the poison from spreading into his body, he chopped his hand off from the elbow and offered it to the river Ganga. अब सोचिए कितनी कितनी उनके अंदर ब्रेवरी होगी। गोली लगने के बाद वो पॉइजन पूरे बॉडी में स्प्रेड ना हो, इसलिए एल्बो में से खुद अपना हाथ काट के रिवर गंगा को अर्पण कर दिया उन्होंने। He freed Jagdishpur from the British control before the died. उन्होंने मरने से पहले जगदीशपुर को वहाँ से फ्री करवा दिया। फिर उसके बाद आता है झांसी। तो झांसी की रानी के बारे में आपने काफ़ी सुना है।
बहुत सारी मूवीज़ भी उनके ऊपर बनी हैं। इन जून 1857 द ट्रूप एट झांसी रिवॉल्व. Rani Lakshmibai, widow of Raja Gangadhar Rao, declared rule. Tatya Tope joined her after Kanpur was lost. On 3rd April 1858, Sir Haig Rose recaptured Jhansi. Lakshmibai escaped to Kalpi near Gwalior, where Tatya Tope joined her. Both marched to Gwalior. Sir Haig Rose also marched to Gwalior and captured in June 1858. Rani died fight bravely. Tatya escaped southward but was uh, betrayed by his friend Man Singh. तात्या was finally hanged. तो इस तरह से झांसी की फाइट हुई. द क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई वॉज अ ग्रेट वॉरियर. द ब्रिटिशर्स डिड नॉट एक्सेप्ट हर एडोप्टेड सन एज द हेयर टू द थ्रोन. क्योंकि जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन थी डलहौजी की, उसके अकॉर्डिंग कोई भी किंग अगर उसका खुद का सन नहीं है और मर जाता है तो उसका किंगडम जो है ऑटोमेटिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मर्ज हो जाएगा. तो यहाँ पे राजा गंगाधर राव का खुद का कोई एक सन था, पर वो बचपन में ही उसकी डेथ हो गई थी. तो उन्होंने एक अपने कज़िन के लड़के को एडॉप्ट किया, पर ब्रिटिशर्स ने ये पॉलिसी अप्लाई की थी कि भाई इस तरह से आप क्राउन प्रिंस अपॉइंट नहीं कर सकते हो. और राजा गंगाधर राव की डेथ के बाद रानी लक्ष्मीबाई को ये बात गलत लगी और उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने बैटल की. This is the reason for her joining the revolt. She was one of the most skillful leaders of the revolt. She had also prepared an army of women to fight against the British. They fought bravely against the British. According to the British officials, Queen Lakshmi Bai was one of the greatest women leaders in the revolt of 1857. और आज की डेट में भी उनकी ब्रेवरी की स्टोरी हम सुनते हैं. रानी लक्ष्मीबाई का जो नाम है वो पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं. 1857 की बात है, आज 2020 हुआ. 150 ईयर्स से ऊपर का टाइम हो गया है, फिर भी हम आज इनको पढ़ रहे हैं उनकी ब्रेवरी की वजह से, उनकी जो अपने कंट्री के लिए जो फीलिंग्स थी उसकी वजह से. उसके बाद है तात्या तोपे, जो रानी लक्ष्मीबाई से मिले. उन्होंने झांसी के रिवोल्ट में रानी लक्ष्मीबाई को हेल्प की, पर जब उनकी डेथ हो गई तो वो वहाँ से एस्केप हो गए थे. तो ये हैं तात्या तोपे. आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे. 1857 के नायक, अंग्रेज़ों की ओर से लड़ रहे जनरल बिडहम को उन्होंने पीछे हटने के लिए मजबूर किया था. उनकी परंपरागत गुरिल्ला युद्ध नीति से ब्रिटिश सेना भी खौफ खाती थी. अपने दोस्त मानसी की गद्दारी के कारण ब्रिटिश सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर मौत के घाट उतार दिया. नाना साहेब पेशवा, तो ये है नाना साहेब पेशवा. ये पेशवा जो एक्चुअली में था वो एक पोस्ट थी. इनका जो नाम था वो हरि कृष्ण देवसरे था. एंड नाना साहेब पेशवा had made Tatya Tope the commander of the army at Kanpur. Soon he became his trusted commander. He skillfully fought to free Kanpur, playing the role of a commander for the first time in his life. For the next 2 years, he played a major role in the revolt across the country. No one in his time had fought as many battles he did. तो तात्या तोपे के टाइम पे तात्या तोपे ने जितनी बैटल की थी उतनी बैटल और किसी ने नहीं की थी. सोल्जर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैड जॉइंड द रिवोल्ट. फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, बरेली, बनारस, अलाहाबाद, आगरा, आजमगढ़ and Gorakhpur had joined. Ajmer, Nasirabad and Abu from Rajasthan and Gwalior, Mansar, Indore and Dhar from the central India participated in the revolt. Satara, Kolhapur, Samantwadi, Nargad, Dharwad, etc. became active in south. However, these centers were scattered. तो रिवोल्ट में पूरे इंडिया में से काफ़ी सारे स्टेट रीजन ने सपोर्ट किया, पर ये जो रीजन थे वो
काफ़ी एक दूसरे से दूर दूर थे, फैले हुए थे, यानी पूरा इंडिया का जो सपोर्ट मिलना था वो नहीं मिला था। और वो टाइम पे कम्युनिकेशन के स्कोप भी इतने ज़्यादा नहीं थे, तो उसकी वजह से एक प्लेस पे क्या हो रहा है वो दूसरी प्लेस पे पता नहीं चलता था। और जो रिवोल्ट हुआ उसका एक रीज़न था कि सब लोग अपने अपने रीजन के लिए बैटल फाइट कर रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे। पूरे इंडिया के लिए कोई रिवोल्ट नहीं कर रहा था, इसलिए नेशनल लेवल की जो लीडरशिप मिलनी चाहिए थी वो भी हमें मिली नहीं थी। और ये सब रीजंस है रिवोल्ट के फेल होने के। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है उसमें हमें गुजरात के बारे में पढ़ना है कि भाई गुजरात का पार्टिसिपेशन क्या था। तो गुजरात में भी रिवोल्ट की इम्पैक्ट हुई थी और गुजरात ने भी काफ़ी अच्छी फाइट दी थी, बट फिर भी जो जो लूप्स हॉल जिसको बोलते हैं, जो कमी रह गई थी वो इस तरह की थी कि जैसे तात्या तोपे में आप देख लीजिए, उसके ही फ्रेंड ने उनको गिरफ्तार करवा दिया। झांसी की रानी में भी ऐसा ही था, उनके ही किसी ने ब्रिटिशर्स को सब इन्फॉर्मेशन दे दी। तो ये सब हमारी कमी थी, हमारे हमारे माइनस पॉइंट थे कि हमारे लोग ही हमारे अगेंस्ट गए। और इसकी वजह से जो जो यूनिटी चाहिए थी वो यूनिटी कहीं ना कहीं बन नहीं पाई, और इस वजह से पूरा का पूरा रिवोल्ट फेल हो गया। पर फिर भी देर आए दुरुस्त आए, फेलियर होने के बाद भी हमने उन वो रिवोल्ट में से बहुत सारी चीज़ें सीखी और फाइनली वो हमें 1947 में यूज़फुल हुई जब हमें फ्रीडम मिली। तो गुजरात का क्या रोल था उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक मैंने जो भी आपको समझाया है, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल प्रॉपरली। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, पर आप यहाँ वीडियो में ऐसे देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, आपका नॉलेज भी बढ़ता है इसकी वजह से। तो यहाँ तक जो भी एक्सप्लेन किया है उसमें अगर आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे टेक्स्ट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।